والے آپ ویڈیو کو پلیز اسکپ مت کیجیے گا، پوری دیکھیے گا۔ ہم حج یعنی عمرہ کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو پہلی بار، کتنی فیلنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو پلیز پورا ہی دیکھیے گا، اور اس میں بہت ہی مزیدار باتیں ہونے والی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کے وسیلہ سے اللہ سے مانگتا ہوں میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہو، آمین۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مناسک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام کے بعد لکھا ہے کہ پھر پہلی جگہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے لیے دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔ اور بہترین چیز وہ جو ادبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی، ادبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس سے پہلی فصل میں ختم پر گزر چکا۔ ابن حجر مکی صحافی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صلح کرنا سلف صالح کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔ وہ جو اتبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی اتبی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس سے پہلی فصل کے ختم پر گزر چکا ہے۔ ابن حجر مکی صحافی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صلح کرنا سلف صالح کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔ یہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے اور اس کے سیاق بتایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے دانا کھانے کی خطا در ہوئی تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل دعا کی۔ اللہ جل شانہ نے دریافت کیا کہ آدم، تم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھ میں جان ڈالی تھی تو میں نے عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ آپ نے اپنے پاک نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب اس کی طویل تم نے مغفرت طلب کی تو میں نے تمہاری خطا معاف کر دی، اور بے نیائی کے لیے دعا چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تو میں دعا کروں، لیکن اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے دعا کی، درخواست کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پہلے بہت اچھی طرح سے وضو کرو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک واتوب ذاہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی اتوضأ بک الی ربی فی حاجتی لی تقضی لی اللہم
नसाफिहु फीहा। तो तर्जुमा, या अल्लाह ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपके नबी जो रहमत के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से आपकी तरफ मतोजा होता हूँ। ए मोहम्मद, मैं आपके तफील से अपने रब की तरफ मतोजा होता हूँ ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। ए अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मेरे हक़ में कबूल फरमा। तर्जुमा, रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को सीए बताया है और बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको सही बताया है और बहकी की रवायत में इसके आगे ये भी है कि इस दुआ के पढ़ने के बाद वो साहिब बीना हो गए। और तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दा सनद के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ के अल्फाज ये नकल किए कि बेहक़्क़े नबी का वल अम्बिया अल्लज़ीना मिन कबली। ए अल्लाह, तेरी नबी के तफ़ील और गुज़श्ता अम्बिया अलैहिस्सलाम के तफ़ील उसके बाद अबन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने और भी ताईदीन इस मजमून को नकल की। और इस दुआ के मुतालिक एक किस्सा ज़ियारत के कसों में 33 पर भी आ रहा है। इस मजमून से ये भी मालूम हो गया कि इस दुआ के वक्त भी मुँह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होना चाहिए। अगर चाहा आम दुआ का अदब ये है कि मुँह किबला की तरफ होना चाहिए, लेकिन उस वक्त किबला की तरफ मुँह करने से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुश्त होती है जो अदब के ख़िलाफ़ है। इसलिए उस वक्त हजूर की तरफ मुँह करके दुआ करें। यानी उस टाइम हर वक्त हम जो नमाज़ पढ़ते हैं तो काबे की तरफ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ मदीना में जब हम वहाँ जन्नत बगी पर खड़े होते हैं तो हजूर की तरफ ही मुँह होना चाहिए, तरफ मुँह करके दुआ करें। इसके बाद अगर किसी और शख्स ने, इसीलिए मकसद हमारा यही है कि आप लोगों को सब चीज़ पता चलना चाहिए, क्योंकि माया के जो पता चलता है तो हम अरकान पूरे नहीं कर पाते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है। इसके बाद अगर किसी और शख्स ने अपनी तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने की फरमाइश की हो तो उसकी तरफ से भी इस तरह सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह मिन फलानिब्नि फुलानी यस्तस्फीहु बिका इला रब्बिका। तो आप पर सलाम, ए अल्लाह के रसूल, फ़लाँ की तरफ से जो फ़लाँ का बेटा है और वो आपसे अल्लाह के पाक बारगाह में सिफारिश चाहता है। पहले फ़लाँ की जगह उस शख्स का नाम ले दो, दूसरी फ़लाँ की जगह उसके बाप का नाम ले। अगर अरबी में कहना मुश्किल हो तो उर्दू में अर्ज़ कर दें कि फ़लाँ आदमी ने आपके बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और शफ़ाअत की दरख्वास्त की है। उलमा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी से सलाम पहुँचाने की दरख्वास्त की हो और उसने उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया हो, यानी वायदा कर लिया हो कि मैं सलाम पहुँचा दूँगा, तो उस पर अब उस सलाम का पहुँचाना वाजिब हो गया, इसलिए कि ये बमज़ल्ला इसकी अमानत है जिसको ये कबूल कर चुका। साहिब इत्तिखाफ लिखते हैं कि
सलाइफ खलफ सब का मामूल दूसरों की मगफिरत सलाम भेजने का रहा है और सलातीन तो मुस्तकिल का शदम कर दीजिए, ठीक है, नहीं थोड़ा सा सलातीन तो मुस्तकिल का शद मदीना तैयबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पहुंचाने की लिए भेजा करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल्ला अजीज रहमतुल्लाह अलैह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज करने के लिए मुस्तकिल कासिद भेजा करते थे। नाज़रीन रिसाला से ये रूसिया भी दरख्वास्त करता है कि अगर उस मुबारक वक्त में ये शाहकार किसी को याद आ जाए तो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह मिन ज़करिया बुन्नी या अल का कंजा लबी यस्तस्फीहु बिका इला रब्बिका अर्ज कर दे है एहसान होगा। और ये अल्फाज याद न रहे तो उर्दू ही उस नकारा का सलाम अर्ज कर दे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के बाद तकरीबन एक हाथ दाहिने तरफ हटकर हजरत सिद्दीक़ कबर रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम पढ़ें। मशहूर कूल के मुवाफिक हजरत सिद्दीक़ कबर रज़ियल्लाहु अन्हा के कबर मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर अतहर के पीछे इस तरह से है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा का सर मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना के मुकाबिल है, इसलिए कि हाथ दाएं जानिब को हो जाने से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा का सामना हो जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम से फरागत के बाद हाथ दाईं जानिब हट कर हजरत फ़ारूक अज़मत रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम पढ़ें, इसलिए कि मशहूर कौल के मुवाफिक हजरत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा की कबर मुबारक हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा की कबर मुबारक के पीछे इसी तरह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का सर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के सामना के मुकाबिल है। इन दोनों हजरात की खिदमत में भी अगर किसी ने सलाम अर्ज करने की दरख्वास्त कर दी हो तो हर एक की खिदमत में अपना सलाम पढ़ने की बाद इसका सलाम अर्ज कर दें। और ये सरापा ख़ता व कसूर भी दरख्वास्त करता है कि अगर नाज़रीन को किसी वक्त याद आ जाए तो इस नापाक का सलाम भी दोनों बारगाहों तक पहुंचा दे। अल्लाह जल्ला शानु आपको उस एहसान का अपने लतफ़ से अजर अता फरमाए। बहुत से उलमा ने लिखा है कि हजरात शेखीन रज़ियल्लाहु अन्हा पर अलहदा सलाम पढ़ने के बाद फिर इन दोनों हजरात के दरमियान में खड़ा हो, यानी जिस जगह खड़े होकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा पर सलाम पढ़ा जाए उससे तकरीबन नसफ हाथ बाएं जानिब को खड़ा होता के दोनों के दरमियान में हो जाए और फिर दोनों फिर मुश्तरक सलाम पढ़ें, जिसके अल्फाज ज़ुबदा में ये लिखते हैं कि अस्सलामु अलैका या जाजी या रसूलल्लाही
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफ़ीक़िही व वज़ीरिही जज़ाकुमुल्लाहु हसनुल जज़ाए ज़ीनकुमा नतवसल्लु बिकुमा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियस्फ़ह लना व यदऊ लना रब्बना अन युहीना अला मिल्लतिही व सुन्नतिही व यासुराना फी ज़ुमरातिही व जमीअल मुस्लिमीन। तुम दोनों पर सलाम ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहलू में लेटने वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटने वालों, तुम पर सलाम ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों तुम पर सलाम ए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों वज़ीरों। तुम्हें हक ताला सानू हमारी तरफ से बेहतरीन बदला तुम्हारे एहसानात का अता फरमाए। हम तुम्हारे पास इसलिए हाजिर हुए कि तुमसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस बात की सिफारिश चाहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह पाक की बारगाह में सिफात फरमावे और अल्लाह से ये दुआ फरमावे कि वो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदा रखे। आमीन। और हमारा और तुम्हारा मुसलमानों का हशर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में हो। आमीन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ हजरात ने उस सलाम के अल्फाज में कम 20 लिखे हैं, जैसा कि सब सलामों में बाज़ हजरात ने मुख्तसर अल्फाज नकल फरमाए हैं और बाज़ ने ज़ायद तहरीर फरमाए हैं और बाज़ ने इस मुश्तरक सलाम को जिक्र ही नहीं किया कि जब अलहदा सलाम अर्ज़ कर चुका है, फिर मुश्तरक की क्या ज़रूरत बाकी रही। लेकिन जिन हजरात ने उसको जिक्र फरमाया है गालिबन उसी वजह से कि यहाँ अब दोबारा सलाम तो मुनज़्ज़ला तामीर और अदब के हैं। असल मकसूद इन दोनों हजरात की खिदमत में सिफारिश की दरख्वास्त है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ की कि दरख्वास्त और सिफारिश कर दे। इसीलिए उसका तर्जुमा लिखा है कि उससे ये अंदाज़ा हो सके कि उस मुकर्रर सलाम की गरज क्या है, यानी उस मुकर्रर सलाम की गरज क्या है। उसके बाद फिर दाईं तरफ आकर दोबारा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर हाथ उठाकर अब्बा अल्लाह जल्ल शानहू की खौफ अहमद व सना करे, उस नेमत जलीला का और उसकी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करे। फिर खूब ज़ौक़ व शौक़ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े। फिर आपके वसीला से अल्लाह जल्ल शानहू से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मशाइख के लिए, अपने अहल व हयाल के लिए, अपने अजीज़ व क़रीब के लिए, अपने दोस्तों और मिलने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की हो, और तमाम मुसलमानों के लिए, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए खूब दुआएं करें और अपनी दुआ को आमीन पर ख़त्म करें। शुरू लिबास और याद आ जाए तो नकारा ज़किरिया को भी अपनी उस मुबारक दुआ में शामिल कर लें। हमारा मकसद बस इतना ही है कि आपको ये सारी जानकारी हो जाए और
जाने के बाद जो चीज़ वहाँ आके पता चलती है वो यहीं से पता चल जाए तो हमारे अरकान पूरे हो जाते हैं और हमें अमल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात शेखीन रज़ी अल्लाह अन्हा की मुबारक कब्रों की तरतीब और सूरत में सात रवायात कतब हदीस व सीरा में आई हैं। इन सब में दो रकातें ज़्यादा मशहूर हैं। इन दोनों की सूरत यहाँ लिखी जाती है ताकि हाजिरीन को समझने में सहूलियत हो। पहली सूरत ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, मतलब सबसे पहले हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर की, फिर हजरत उमर फ़ारूक की, यानी तीनों की ये सारी लिखी हुई हैं। हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा। उलमा सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने वफ़ा अलवाफ़ा में इन सब सूरतों को तफसील से बयान किया है और उस सूरत को सबसे ज़्यादा सही और राजी रवायत बयान किया है। इसके इत्बा में साहिब अतहाफ ने भी उसको असरुल रिवायात लिखा है कि उलमा सऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये दो सूरतें इन सब रवायात में ज़्यादा राजी हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तस्वीर में वारिद हुई हैं, यानी उनकी कब्र की तस्वीरों में वारिद हुई हैं, लिखी हुई हैं। अबू दाऊद शरीफ में ये दूसरी सूरत वारिद हुई और हाकिम ने उसको सही बताया। उलमा जरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिरहा मवाइफ में लिखा है कि इन 7 रवायात में से 5 सैफ हैं और 2 सही हैं। इन 2 में भी पहली सूरत को अक्सर उलमा ने राजी करार दिया और रज़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसी पर बहुत शौक़ किया कि इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मशहूर रवायात करार दिया। उसके बाद उस तवाना अबू लुहाबा के पास आकर 2 रकात नफिल पढ़कर दुआ करें, फिर दोबारा रोज़ा में जाकर नफिलें पढ़ें और दुआ दरूद वगैरह में खुशुआ से मशगूल रहें, यानी खुशी से और दिल से उसमें मशगूल रहें जो हम सलाम भेजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। 10वीं फसल में जहाँ मस्जिद के सतून का जिक्र आ रहा है उसमें उस सतून का मुफस्सल हाल आ रहा है। उसके बाद मुनव्वर के पास आकर दुआ करें। उलमा ने लिखा है कि मुनव्वर की उस जगह पर जिसको रोमाना कहते हैं हाथ रखकर दुआ करें, इसलिए कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के वक्त उस पर दस्ते मुबारक रखते थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया में लिखा है कि मुस्तहब में मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो रोमाना अब बाकी नहीं। जब मस्जिद नबवी में दूसरी मर्तबा आग लगी है उसमें जल गया था। सिपा काजी हियाज और उसकी सूरह लिहालिल कारी में लिखा है कि हजरत अबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा गया कि मुनव्वर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह
फेर कर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा और अबन कसीत रहमतुल्लाह अलैह और अतबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुनव्वर के उस रुमाना पर जो कब्र के नज़दीक है और बाबा सूरह लिहालिल कारी में लिखा है कि हज़रत अबन उमर रज़ियल्लाहु को देखा गया कि मुनव्वर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह हाथ फेर कर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा और अबन कसीत रहमतुल्लाह अलैह और अतबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुनव्वर के उस रुमाना पर जो कब्र के नज़दीक है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा करते थे। साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा बरकत की नीयत से उस पर दायां हाथ फेरा करते थे। रुमाना मुनव्वर की वो मोट कहलाती है जो अनार की शक्ल किनारों पर बनी हुई होती है। उसके बाद उस्तुना हनाना के पास जाकर दरूद शरीफ और दुआ एहतमाम से करें। सतून के बयान में सबसे पहले उसी का जिक्र आ रहा है। इसके बाद बाकी मशहूर सतूनों के पास जाकर दुआ करें और उसको कोशिश करें कि वहाँ के क़याम में कोई नमाज मस्जिद नबवी की जमात से फौत ना होने पाए। क़त्ल अल क़दर के क़याम थोड़ा है और सवाब बहुत ज़्यादा ना मालूम, फिर हाज़री मुशर हो सके या ना हो सके। उसका ख्याल रखें कि ज़ियारत के वक्त न दीवारों को हाथ लगावे कि ये बेअदबी और गुस्ताखी है और न दीवारों को बोसा दें कि ये हजर असूद है कि अमल है। न दीवारों को चिमटे न तवाफ को करें, इसलिए कि तवाफ बैतुल्लाह शरीफ के साथ हाजिर है। कब्र का तवाफ हराम है। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जाहिलों को फेल का इत्तबा न करें, चाहे वो सूरत से मुशाइक मालूम होते हों। न कब्र के सामने झुके, न जमीन को पोछा दे, न कब्र की तरफ मुंह करें।